Hello friend, today we will see a dual combustion cycle. Until now we have finished our two cycles, that is first cycle is Otto cycle on which petrol engine is works, and second is diesel engine on which diesel engine is work. Okay, so what is the main difference between Otto cycle and diesel cycle is that in Otto cycle heat is added at constant volume, whereas in diesel cycle heat is added at constant pressure. Okay, and remaining all the processes are same for two cycles, that is Otto and diesel cycle. Now our third cycle is dual combustion cycle. Actually dual combustion cycle is combination of Otto cycle and diesel cycle, in which all the processes are same but heat is added at constant pressure and constant volume. मतलब partly heat is added constant partly heat is added at constant volume like Otto cycle, and remaining heat is added at constant pressure like diesel cycle. Okay, मतलब ये पॉइंट प्रोसेस 2 to 3 क्या है, हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो ऑटो साइकिल में था, और 3 to 4 क्या है, हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर जो डीजल साइकिल में था. Okay, and other remaining processes are same, that is 1 to 2 is adiabatic compression, 2 to 4 is heat added, वो दो तरीके से होता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर. 4 to 5 एक्सपांशन, adiabatic expansion, and 5 to 1 heat rejected at constant volume. ओके, तो जो बाकी के तीन प्रोसेस है, दैट इज ये और ये सेम है, except this is the combination of Otto cycle and diesel cycle. Similarly, this is the TS diagram. 1 to 2 is adiabatic compression, 2 to 3 heat added at constant volume, 3 to 4 heat added as constant pressure, 4 to 5 adiabatic expansion, 5 to 1 heat rejected at constant volume. Clear? So overall in a dual cycle there are 5 processes: 1 to 2 adiabatic compression, 2 to 3 heat added at constant volume, 3 to 4 addition of heat at constant pressure, 4 to 5 adiabatic expansion, and 5 to 1 heat rejected at constant volume. Clear? This cycle is a combination of Otto and diesel cycle in a way that heat is added partly at constant volume and partly at constant pressure. Clear? So the advantage of which is that more time is available for fuel for combustion because of lagging characteristic of fuel. This cycle is invariably used for diesel and hot spot ignition engine. तो इसमें आपको combustion बहुत अच्छी तरीके से होता है. So whatever drawback of diesel cycle is that can be overcome by using dual cycle. ओके, कंप्रेशन रेशो जो रहता है ना वो इम्पोर्टेंट रहता है, मतलब कंप्रेशन रेशो जितना बढ़ेगा उतना इफिशिएंसी बढ़ती है ऑटो और डीजल साइकिल दोनों में, लेकिन जितना ज़्यादा कंप्रेशन रेशो बढ़ेगा उतना इनप्रॉपर कंबशन के चांसेस रहते हैं, जैसे कि डिटोनेशन और नॉकिंग. तो ये टर्म अवॉइड करने के लिए कंप्रेशन रेशो ज़्यादा भी बढ़ा नहीं सकते डीजल साइकिल में और ऑटो साइकिल में. ओके, तो एक लिमिट तक ही हम कंप्रेशन रेशो बढ़ा सकते हैं इन डीजल ऑटो साइकिल. उसके बाद में नॉकिंग या डिटोनेशन स्टार्ट होता है, मतलब इनकम्प्लीट कंबशन होता है जो एफिशिएंसी को हैम्पर करता है. तो उसके लिए ड्यूल साइकिल इज बेस्ट बिकॉज हीट देर आर मच टाइम और इनफ टाइम फॉर फ्यूल टू कम्बस्ट. ओके, तो अब इसका एफिशिएंसी हम देखेंगे. सो हीट इज सप्लाइड दो प्रोसेस से हीट सप्लाइड हो रही है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए. 2 to 3 constant volume और 3 to 4 constant pressure. तो heat supplied 2 to 3 plus heat supplied in 3 to 4. तो 2 to 3 एक constant volume process है, तो heat supplied कितना आएगा, एक मिनट, heat supplied CV T3 minus T2. Similarly 3 to 4 constant pressure है, तो कितनी for unit kg, MCPDT actually it is, but mass is taking, we are considering mass यूनिट मतलब 1 kg. और 3 to 4 में कितना हीट सप्लाई होगा, Cp इंटू T4 माइनस T3. सिमिलरली हीट इज रिजेक्टेड, देखो यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम,
तो कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है यहाँ पर, CV T5 माइनस T1। सो वर्क डन आपको मालूम है, वर्क डन इज नथिंग बट हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। हीट सप्लाइड इतना है और हीट रिजेक्टेड ये वाला पार्ट, तो ये हो गया वर्क डन, ये पूरा हो गया वर्क डन। क्लियर। और ये हो गया हीट सप्लाई। सो वी कैन इजीली कैलकुलेट इफिशिएंसी वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। तो वर्क डन की वैल्यू एज इट इज पुट कर दिया हमने और हीट सप्लाई की भी वैल्यू पुट कर दी। अब इसका हम डिनोमीटर सेपरेट कर सकते हैं। आप ये इतना कंसिडर करो एक और इतना कंसिडर करो दो, ये दो न्यूमरेटर हम सेपरेट कर रहे हैं, तो ये डिवाइडेड बाय ये 1 हो गया माइनस ये डिवाइडेड बाय CV डिवाइडेड बाय डिनोमीटर। हमने क्या किया, ये डिनोमीटर को सेपरेट किया, दो एक ये पार्ट पकड़कर और एक ये पार्ट पकड़, तो ये पार्ट दोनों सेम है तो कैंसिल हो गया, वहाँ पर बचा 1 माइनस ये वाला पार्ट डिवाइडेड बाय डिनोमीटर। क्लियर। तो अब देखो हम यहाँ से ऊपर CV है तो हम क्या करेंगे, डिनोमीटर से CV कॉमन निकालेंगे। ओके, अब यहाँ से CV कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर CV है यहाँ पर नहीं, तो हम क्या करेंगे CV से डिवाइड कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन कैसे होगा, ऊपर एक CV वो ब्रैकेट डिवाइडेड बाय CV हमने बाहर निकाल लिया, T3 माइनस T2, यहाँ पर होगा CP बाय CV, T4 माइनस T3 ब्रैकेट को CV कैंसिल हो जाएगा, लेकिन CP बाय CV क्या रहता है, गैमा बराबर। तो यहाँ पर क्या आएगा, गैमा T4 माइनस T3, मतलब CV ये वाला CV T5 माइनस T1 डिवाइड बाई T3 माइनस T2 प्लस गैमा T4 माइनस T3। क्लियर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमें मालूम है कंप्रेशन रेशो क्या है, V1 बाई V2। कंप्रेशन रेशो आप यहाँ पर देख सकते हो, V1 इज टोटल वॉल्यूम एंड V2 क्लियरेंस वॉल्यूम। सो what is compression ratio, total volume upon clearance volume. So if you consider process 1 to 2 that is adiabatic, so by using adiabatic relation what we can get, T2 by T1 equals to V1 by V2 raised to gamma minus 1, but V1 by V2 क्या है, compression ratio, so T2 by T1 equals to R raised to gamma minus 1। ओके इसका मतलब हम T2 को इन टर्म्स ऑफ T1 लिख सकते हैं या T1 को इन टर्म्स ऑफ T2 लिख सकते हैं। उसके बाद में हम दूसरी प्रोसेस करेंगे, कंसीडर करेंगे ये वाली 2 to 3, दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस दीज आर द रिलेशंस। ओके, तो P3 बाई T3 इक्वल्स टू P2 बाई T2, तो T3 बाई T2 को हम लिख सकते हैं P3 बाई P2, where P3 by P2 is beta, that is known as explosion ratio or pressure ratio। P3 by P2 मतलब देखो कंबशन स्टार्ट होने के बाद जो प्रेशर बढ़ रहा है वो कितना है, P3। तो जहाँ से स्टार्ट होकर जहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है उसका रेशो P3 by P2 मतलब एक्सप्लोजन रेशो और प्रेशर रेशो। ओके, उसे हमने बीटा नाम दिया है। ओके, तो T2 को हम क्या लिख सकते हैं, T3 बाय बीटा। Similarly, next process is 4 to 5, वो भी एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक रिलेशन हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमारा इक्वेशन था T4 बाय T5 इक्वल्स टू V5 बाय V4 रेज टू गामा माइनस 1। क्लियर। अब ये V5 बाय V4 को यहाँ पर देखो हमने क्या किया, V5 बाय VR। अब दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो यहाँ पर, ये जो 5 to 1 प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम है, मतलब V1 इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर, V5। ओके, ये बात ध्यान में रखो, V1 इक्वल्स टू V5। तो V5 बाय V4 को हमने क्या लिखा, V1 बाय V4, क्योंकि V5 इक्वल्स टू V1 है। अब हमने क्या किया, इसको V2 से डिवाइड कर दिया, V2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, या इसको आप देखो ऐसे लिख सकते हैं हम, V1 बाय V4, इसको भी V2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी V2 से डिवाइड कर दिया, तो V1 बाय V2 क्या आएगा, R। ओके, और V4 बाय V2 क्या आएगा, कट ऑफ रेशो। क्लियर। सो V5 बाय V4 को हम क्या लिख सकते हैं, कंप्रेशन रेशो डिवाइडेड बाय कट ऑफ रेशो।
अब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए रिलेशन यूज़ करेंगे हम 3 to 4। तो हम लिख सकते हैं उसको T4/T3 इक्वल्स टू V4/V3। लेकिन V4/V3 क्या है? कट ऑफ रेशो। तो उसको T4 को हमने क्या लिखा? T3 इंटू कट ऑफ रेशो इंटू T3। ओके, मतलब हमने T4 को इन टर्म्स ऑफ T3 लिखा। क्लियर? सिमिलरली हम T4 को इन टर्म्स ऑफ T5 लिख सकते हैं और T2 को भी हम इन टर्म्स ऑफ T3 लिख सकते हैं। ओके, अब ये जो T4 की वैल्यू आ गई, अब हम क्या करेंगे? ये जो T4 की वैल्यू आ गई है, इसको हम इस इक्वेशन में उसको रखेंगे। मतलब हम जैसे T4 को इन टर्म्स ऑफ T3 लिख सकते हैं, वैसे भी T5 को हम इन टर्म्स ऑफ T3 लिख सकते हैं, बराबर। और T2 को भी हमने इन टर्म्स ऑफ T3 लिखा है, मतलब आराम से हम उसमें T3 कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम T4 की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, तो वो है रो T3/as it is T5 R बाय कट ऑफ रेशियो डिवाइड बाय गामा -1। मतलब हमने T5 को इन टर्म्स ऑफ T3 लिख दिया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें क्या मिलेगा? T5 इक्वल्स टू रो T3 रो अपॉन R रेस टू गामा -1। मतलब हम अब T5 को भी इन टर्म्स ऑफ T3 लिख पा रहे हैं, T4 को भी इन टर्म्स ऑफ T3 लिख पा रहे हैं और T2 को भी इन टर्म्स ऑफ T3 लिख पा रहे हैं। तो ये वैल्यू अब हमने क्या किया? यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे? T2 की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाला था, एक मिनट, इक्वेशन 2, इसमें हम T2 की वैल्यू जो यहाँ पर ही लिखेंगे, तो हम T1 को भी इन टर्म्स ऑफ T3 लिख पाएंगे, बराबर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? T2 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, ये वाली। तो ये इक्वेशन क्या होगा? T3/बीटा अपॉन T1 इक्वल्स टू R रेस टू गामा -1। मतलब T1 को हम लिख सकते हैं T3/बीटा डिवाइडेड बाय R रेस टू गामा -1। मतलब हमने T1, T2, T4 और T5 इन सबको इन टर्म्स ऑफ T3 में लिख दिया है और उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। तो यहाँ से हम आराम से T3 कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ से T3, यहाँ से T3, यहाँ से T3, यहाँ से T3 निकाल लिया, कैंसिल हो गया। और ये देखो रो रेस टू गामा -1, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। सिमिलरली आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर भी R रेस टू गामा -1 है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में R रेस टू गामा -1 कॉमन निकाल लिया, तो ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको ये मिलेगा। और यहाँ पर आपको 1/बीटा जो एज इट इज़ लिखा है यहाँ पर। समझ में आ गया यहाँ पर क्या हो रहा है? ये देखो, ये रो और ये रो, मतलब रो रेस टू 1 और रो रेस टू गामा -1। तो ये क्या होगा? रो 1 प्लस गामा -1, -1 प्लस 1 कैंसिल, रो रेस टू गामा जो यहाँ पर लिखा है। ओके, इसके डिनोमीटर में R रेस टू गामा -1 है, इसके भी डिनोमीटर में R रेस टू गामा -1 है, उसको कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या बचा? रो रेस टू गामा और यहाँ पर 1/बीटा, ये होगा सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद में हमने क्या किया? यहाँ से T3 निकाला, यहाँ से भी T3 निकाला, तो 1 - 1/बीटा प्लस यहाँ से भी T3 निकाला और तो यहाँ पर आएगा गामा इन ब्रैकेट रो -1, वो सब T3 कैंसिल हो गए। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन डिनोमीटर सेपरेट वगैरह करके हमें मिलेगा ड्यूअल साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला। क्लियर? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी ऑफ ड्यूअल साइकिल। अब इसके बाद में है वर्क डन। तो वर्क कहाँ पर डन हो रहा है? जहाँ पर आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो वो दो तरीके से हो रही है। ओके, जब वॉल्यूम चेंज होता है तभी वर्क डन होता है। तो कांस्टेंट प्रेशर में जो मतलब यहाँ पर जो वर्क PdV वर्क प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर वर्क प्रोड्यूस होगा, लेकिन कंप्रेशन के लिए कुछ वर्क कंज्यूम होगा। तो ये प्लस ये माइनस ये, तो कांस्टेंट प्रेशर साइकिल में कितना वर्क प्रोड्यूस हो रहा है? P3 V4 माइनस V3 प्लस एडियाबैटिक एक्सपांशन में और पावर स्ट्रोक में इतना P4 V4 माइनस P5 V5 डिवाइड बाय गामा -1 और कंप्रेशन के लिए इतना कंज्यूम हो रहा है। क्लियर? तो अब हम यहाँ पर क्या किया हमने? यहाँ पर V3 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर रहेगा V4/V3, इट इज़ नथिंग बट कट ऑफ रेशो, तो यहाँ पर रहेगा रो -1।
सिमिलरली हम इसको इसका डिनोमिनेटर सेम है तो साथ में लिखेंगे, साथ में लिख लिया। यहाँ पर P3 V3 कॉमन लिया है। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो गामा -1। अब सबका डिनोमिनेटर सेम। यहाँ पर देखो अभी या इसमें से भी V3 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, P4 भी और बाहर निकाल लिया और V3 भी, तो यहाँ पर क्या बचा, रो माइनस, यहाँ पर P4 नहीं था तो P4 इंटू R एज इट इज़, माइनस यहाँ से P2 V3 बाहर ले लिया तो 1 माइनस, यहाँ पर P2 नहीं है तो P1/P2 R, और V3 को बाहर लिया तो P1/P2 इंटू R। क्लियर। बट P5/P4 को हम क्या लिख सकते हैं, एडियाबेटिक रिलेशन यूज करके V4/V5, और जिसको हम लिख सकते हैं रो अपॉन R रेस टू गामा, और P2/P1 को लिख सकते हैं R रेस टू गामा। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें मिलेगा वर्क डन का फार्मूला। हम वर्क डन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है। क्लियर। सो मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या है, वर्क डन इक्वल्स टू मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या रहेगा, वर्क डन अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम मतलब V1 माइनस V2। ओके, तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, V1 अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, यहाँ से इसमें से हमने V1 कॉमन निकाल लिया, तो वो हो गया V1 माइनस V2/V1। यहाँ पर होगा V1 1 माइनस V2/V1, तो इसको हम लिख सकते हैं V1 1 माइनस V2/V1 मतलब 1/R। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये होगा V1 R माइनस 1 अपॉन R, जो यहाँ पर लिखा है। क्लियर। वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पर पुट किया, और यह एज इट इज़ वाला डिनोमिनेटर, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें मिलेगा मीन इफेक्टिव प्रेशर। क्लियर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो बहुत ही सिंपल थी ये ड्यूल साइकिल। सिर्फ आपको रिलेशन यूज़ करना है, आपको इसका रट्टा नहीं मारना है, समझ के लीजिए क्या हो रहा है। आप इसको इजीली अगर एक बार समझ में आए तो कितनी भी बार डिराइव कर सकते हैं। सो दिस इज़ दी ड्यूल साइकिल। इसके बारे में हमने इसकी इफिशिएंसी, वर्क डन और मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला देखा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो अगले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। तो अगर आपको कुछ डाउट रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू।